ضلع ڈی خان پر مہربان مدر اینڈ چائلڈ کیئر اسپتال پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ منصوبے پر 3 ارب 80 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ ٹیچنگ اسپتال کے ایمرجنسی اور OPD بلاک کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے تعمیراتی کاموں کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں جنوبی پنجاب کے عوام کی محرومیوں کو ختم کر کے دم دیں۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے اپنے ضلع ڈیرہ غازی خان میں متعدد ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا۔ ڈیرہ غازی خان میں مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ مدر اینڈ چائلڈ پروجیکٹ پر 3 ارب 80 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ٹیچنگ ہسپتال ڈیرہ غازی خان کی ایمرجنسی اور ROPD بلاک کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ ایمرجنسی اور ROPD بلاک پروجیکٹ پر 3 ارب 84 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ نے ٹیچنگ ہسپتال میں ڈائگنوسٹک امیجنگ ڈپارٹمنٹ کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ٹیچنگ ہسپتال پناہ گاہ کو جلد از جلد فنکشنل کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے ڈیرہ غازی خان میں زیر تعمیر انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ کیا اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے تعمیراتی کاموں پر ہونے والے پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا اور ترقیاتی کام تیز کرنے کی ہدایت کی۔ ہسپتال کے ترقیاتی کاموں پر 2 ارب روپے لاگت آئے گی۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ 200 بستروں پر مشتمل یہ ہسپتال ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کے لیے تحفہ ہے۔ بلوچستان اور سندھ کے لوگ بھی اس انسٹیٹیوٹ میں علاج کرا سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ڈی خان آمد ہوئی۔ مختلف وفود سے ملاقاتیں کی۔ صنعتکاروں، تاجروں، وکلاء برادری کے مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی۔ کہتے ہیں مسائل کے حل کے لیے اب جنوبی پنجاب کے شہریوں کو لاہور نہیں جانا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ڈی خان آمد ہوئی۔ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، بار ایسوسی ایشن، ٹریڈرز اور PTI کے وفود نے ملاقاتیں کی۔ انہوں نے صنعتکاروں، تاجروں اور وکلاء برادری کے مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب سیکٹریٹ کو مکمل انتظامی اور مالی خود مختاری دے دی ہے۔ شہریوں کو کام کے لیے لاہور نہیں جانا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ 1,30,000 بھرتیاں کی جائیں گی۔ وزیر اعظم کی قیادت میں ملک درست ٹریک پر آ چکا ہے۔ CM پنجاب سردار عثمان بزدار نے سرکٹ ہاؤس میں کھل کچہری بھی لگائی۔ فردن خود شہریوں کی نشستوں پر گئے اور درخواستیں وصول کی۔ شہریوں کی شکایات کا موقع پر ازالہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عوامی مسائل کے حل میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے خود گاڑی چلا کر شہر کا دورہ بھی کیا اور صفائی ستھرائی کے انتظامات چیک کیے اور زیر تکمیل منصوبوں کا جائزہ بھی لیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ CM سردار عثمان بزدار نے اپنے علاقے بارتھی میں بھی 9 منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ منصوبوں پر 5 ارب 78 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ زین سے بارتھی تک سڑک کی مرمت ہوگی۔ نالا سنگڑ پر پل بنے گا۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کی 60 بیڈ تک اپ گریڈیشن ہوگی۔ ضلع میں 7 بار بارڈر ملٹری پولیس چیک پوسٹ اور تھانے 12 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے اپنے علاقے بار 3 میں 5 ارب 78 کروڑ روپے کے 9 پروجیکٹس کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھ دیا۔ وزیر اعلیٰ نے زین سے بار 3 تک سڑک کی مرمت اور نالا سنگھر پر پل کی تعمیر کے منصوبے کا افتتاح کیا۔ زین بار 3 سڑک کی تعمیر و مرمت اور نالا سنگھر پر پل 71 کروڑ 18 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر ہوگا۔ کوہ سلیمان ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے تحت 7 منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال بار 3 کی 60 بیڈ تک اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ منصوبے پر 32 کروڑ 35 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کوہ سلیمان میں سول ویٹرنری ڈسپینسریوں کے قیام کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ منصوبے پر 11 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ 7 بارڈر ملٹری پولیس چیک پوسٹ اور تھانوں کے منصوبوں کا بھی سنگ بنیاد رکھا گیا۔ کوہ سلیمان میں تحصیل کمپلیکس، بار 3 میں کوہ سلیمان پبلک اسکول آف ایکسلنس پروجیکٹ اور بار 3 ملٹی پرپز ہال کی تعمیر کے منصوبے کا بھی سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کوہ سلیمان کے مختلف علاقوں کی رابطہ سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے منصوبے کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ کوہ سلیمان کے مختلف علاقوں کی 22 رابطہ سڑکیں 2 ارب 13 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہوں گی۔ پنجاب کو بلوچستان سے منسلک کرنے کے لیے 122 کلومیٹر طویل روڈ تعمیر کی جائے گی۔ چوکی والا کو براستہ زین بار 3 اور کھرل بزدار بلوچستان سے ملانے والی سڑک کی تعمیر و توسیع پر 8 ارب 93 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ میاں والی بس اسٹینڈ پر بڑی گاڑیاں مین گیٹ کی بجائے دیگر راستوں سے گزرنے لگی ہیں۔ ورتاخیل چوک کے تاجروں کی مشکلات بھی بڑھ گئی ہیں۔ اختر مجاز کی رپورٹ دیکھیے۔ میاں والی جنرل بس اسٹینڈ پر بڑی گاڑیاں مین گیٹ کی بجائے وتخیل چوک مغربی بازار سے گزرنے لگی۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ بڑی گاڑیوں کے باعث ٹریفک رک جاتی ہے، جس کی وجہ سے خریداروں نے دکانوں کا رخ کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ جی سر، بہت سارا مشکل ہوتا ہے ہمیں، لہذا ادھر گاڑی جو رش لگ جاتا ہے، ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا، لہذا آپ کو چاہیے کہ گاڑی ادھر سے لگائے، ادھر سے نہ لگائیں۔ اب الیکشن نہیں جا سکتی، رش بہت بڑھ جاتا ہے، اس لیے وجہ سے اس پر گاڑی پھر جائے، مہربانی ہے جی۔
شہریوں نے بتایا کہ بازار سے چند قدم کے فاصلے پر DHQ ہسپتال ہے، اکثر اوقات ایمبولینسز کو بھی رستہ نہیں ملتا۔ اس سائڈ کو یعنی کہ رش ختم کرنا چاہیے، عوام کو بڑی تکلیف ہے اس مسئلے دے وچ، تے لہذا اپیل ہے کہ بساں دا دوسری سائڈ والا رستہ اختیار بساں کو کرنا چاہیے۔ تاجروں اور شہریوں نے بڑی گاڑیوں کو مین گیٹ سے گزرنے کا مطالبہ کر دیا تاکہ مشکلات سے چھٹکارا مل سکے۔ کیمرہ مین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ محمود پارک میں نصب واٹر فلٹریشن پلانٹ 2 سال سے غیر فعال ہے۔ احمد پور شرکیہ کے شہری صاف پانی کی بوند بوند کو ترس۔ احمد پور شرکیہ کا زیر زمین پانی نہانے کے قابل بھی نہیں، جبکہ PTI سرکار نے صاف پانی کی فراہمی کا وعدہ کیا جو آج تک پورا نہیں کیا گیا۔ محمود پارک میں شہر کا مین واٹر فلٹریشن پلانٹ 2 سال سے غیر فعال ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ گرمیوں کا موسم آنے والا ہے، صاف پانی کی اشد ضرورت ہے۔ پانی کیا نہیں تھا کرے غزین عباسی صاحب نے بڑھوایا دہی کو غور کریں کھلواویں ان کے بعد اتنا خرچہ بھی تھیا لیکن یہ پلانٹ بند ہے۔ موجودہ حکومت کے فنڈ سے 22 واٹر فلٹریشن پلانٹ منظور کرائے گئے، کچھ تو موقع پر فعال کر دیے گئے مگر چند ابھی بھی غیر فعال ہیں۔ شہریوں نے MPA شہزادہ غزین خان عباسی سے پلانٹ فعال کرانے کی اپیل کی ہے۔ موجودہ وقت کی اہم ضرورت صاف پانی ہے۔ صاف پانی کے حصول کا شہریوں نے مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، احمد پور شرکیہ۔ لیا میں سیویج مسائل گمبھیر، گرلز اسکول چیک 146 کی طالبات اور اساتذہ کی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ گندے پانی کے تالاب بننے سے دیواریں گرنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ لیا انتظامیہ کی نااہلی، تعلیمی ادارے بھی سیوریج مسائل کا شکار ہو گئے۔ گرلز اسکول چیک 146 کے باہر گندے پانی کے تالاب، طالبات اور اساتذہ کی مشکلات بڑھ گئی، جبکہ دیواریں گرنے کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا۔ اساتذہ اور طالبات کا احتجاج کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مسائل فوری حل کیے جائیں۔ کئی گاڑیوں کے ایکسل بھی ٹوٹ چکے ہیں، گاڑیاں جو ہے وہ گندے پانی کی وجہ سے آگے تک نہیں آ سکتی، ہمیں کبھی تو باہر وہ اتار دیتے ہیں، گیٹ کے سامنے نہیں لا کے اتارتے۔ یہاں سے سارا گندا پانی ہٹایا جائے اور ہمارے اسکول کی 4 دیواری کو مضبوط بنایا جائے اور ہمارے اسکول میں کمروں کی کمی ہے اور کمرے بھی بنوائے جائیں۔ چک 140 کے مکینوں نے ڈپٹی کمشنر لیا سے مسائل فوری حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زہد سرفراز، روہی، لیا۔ ملتان میں ایمرسن یونیورسٹی بننے کے بعد ایمرسن کالج کے اساتذہ سرپلس ہو گئے ہیں۔ طلبہ کے لیے کم فیس کی سہولت بھی ختم ہو گئی ہے، یہ رپورٹ دیکھیے۔ ملتان میں ایمرسن کالج کو یونیورسٹی میں اپ گریڈ کر دیا گیا۔ کالج کا درجہ ختم ہونے پر طلبہ اور اساتذہ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ایمرسونینز نے یونیورسٹی کے بدلے کالج بحالی کا مطالبہ کر دیا۔ پروفیسر حمید رضا صدیقی کا کہنا تھا کہ سرپلس ملازمین کو شہر سے باہر منتقل نہ کیا جائے۔ ایک دقت یہ بھی ہے کہ وہ بہت سے اساتذہ جو یونیورسٹی میں ملازمت کے اہل نہیں رہیں گے، انہیں ملتان سے باہر جانا پڑے گا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس سے ملتان ایک طرف قابل لوگوں کی خدمات سے بھی محروم ہو جائے گا، دوسرے یہ کہ انہیں دقتیں بھی ہوں گی۔ پروفیسر حمید رضا صدیقی کا مزید کہنا تھا کہ ایمرسن کالج کی ایک تاریخ ہے جسے ختم کرنا مناسب نہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر امتیاز بلوچ کا کہنا تھا کہ ایمرسن کالج کے لیے اعلیٰ افسران سے ملیں گے جس سے کالج کی بحالی میں مدد ملے گی۔ آج کا جو یہ ایمرسونین کا شعبہ اردو کی میزبانی میں یہ ایک فنکشن ہوا ہے، اس میں دراصل ایک 67 میڈلز انہوں نے گولڈ میڈل دیے تھے بچوں کو۔ BS اور MA MSc کے مختلف سیشنز کے بچے جو ہیں ہمارے، ان کو فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن جن بچوں کی آئی ان کو فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن میں پہ گولڈ میڈل ملا، اور اس طرح سے ہمارے 18 بچے یونیورسٹی لیول پہ ہر شعبے سے شامل تھے جو ہم نصابی سرگرمیوں میں بچے ایکٹیو رہے۔ ایمرسونینز کا کہنا تھا کہ ایمرسن کالج کے ساتھ جنوبی پنجاب بھر کے طلبہ کی یادیں وابستہ ہیں، اس مادر علمی کو کسی طور بند نہیں ہونے دیا جائے گا۔ کیمرہ مین ہارون کے ساتھ طیب سیف، ملتان۔ کورونا نے جنوبی پنجاب میں پنجے گاڑ لیے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 332 افراد کووڈ کا شکار ہو گئے ہیں۔ رحیم خان میں 68، ملتان 58، جبکہ بہاولپور سے کووڈ کے 57 کیسز سامنے آ گئے ہیں۔ ڈی خان 49، سرگودا 43، بہاول نگر اور راجن پور میں 16 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ خانیوال 7، مظفر گڑھ 6، بہاڑی 5، لودھرا 4، بھکر سے 3 افراد متاثر۔ ملتان میں مثبت کیسز کی شرح 9.4% ریکارڈ کی گئی ہے۔ کورونا کے باعث ملتان اور ڈی خان میں ایک شخص جان کی بازی بھی ہار گیا ہے۔ سرگودا 43، ڈی خان 49، بہاول نگر، راجن پور میں 16 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ 7 خانیوال میں، مظفر گڑھ میں 6، بہاڑی 5، لودھرا 4، بھکر سے 3 افراد متاثر ہوئے۔ خبردار ہوشیار، بہاولپور میں کووڈ کی شرح 17% ہو گئی۔ ڈائریکٹر ایمرجنسی وکٹوریہ اسپتال ڈاکٹر عامر بخاری نے شہریوں سے SOPs پر سختی سے عمل کرنے کی اپیل کی۔ بہاولپور میں گزشتہ کئی روز سے کورونا کی شرح 17% ہے۔ ڈائریکٹر ایمرجنسی وکٹوریہ اسپتال ڈاکٹر عامر بخاری کہتے ہیں شہری SOPs پر سختی سے عمل کریں۔
डॉक्टर आमिर बुखारी का मजीद कहना था कि बूस्टर डोज लगवाना बहुत जरूरी है। शहरी कोरोना को आसान मत ले। हमारे पास जो नंबर ऑफ केसेस हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। कोरोना की लास्ट 4 डेज में हमारे पास कुछ 65 केसेस ऐसे हैं जो कोरोना के अलामात के साथ आए थे, उनकी रिपोर्टें पॉजिटिव आई हैं। लोगों को ये एहतियात करने की ज़रूरत है कि जो बूस्टर डोज अवेलेबल है राउंड द क्लॉक एमरजेंसी में और 3-4 जो बहावलपुर के और सेंटर्स में, तो बूस्टर डोज लगवाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मरीज जिनको 6 महीने पूरे हो चुके हैं। कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद अवामी मुकामात पर शहरियों का मेल जोल जारी है। हालांकि कोरोना से बचने के लिए इस वक्त सख्त एहतियात की जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। जतोई के यूटिलिटी स्टोर पर 1 माह से आटा गायब है, जबकि चक्की का आटा भी 3200 रुपए फी मन हो गया। गरीब फाकों पर मजबूर हैं, जबकि मजदूरों की मुश्किलात बढ़ गई। जतोई में आटे की कीमतें आसमान छूने लगी। ओपन मार्केट और चक्कियों पर फी मन आटे की कीमत 3200 रुपए हो गई। जतोई के यूटिलिटी स्टोर पर 1 माह से आटे की सप्लाई बंद है, जबकि दाल चना और सफेद चना भी गायब है। मयारी घी और ऑयल का कोई ब्रांड दस्तयाब नहीं। शहरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स का आवाम को कोई फायदा नहीं। आटा नहीं मिलता पिया, घी नहीं मिलता पिया, सर्फ नहीं मिलता पिया। आटा महंगा मिल रहा चक्के थे 3200 रुपए मन है, 9100 देने पर मिलता ही नहीं। हम आटा लेने आए हैं, सब सौदा लेने आए हैं। आटा मिला है? नहीं। स्टोर इंचार्ज का कहना था कि गुज़िश्ता 1 माह से आटे की सप्लाई बंद है। दाल चना और सफेद चना भी नहीं आ रहा। लास्ट मरतबा पिछले 5 जनवरी तक आई थी, उसके बाद सप्लाई हमारे पास नहीं आ रही आटे की। अच्छा। बाकी तकरीबन चीजें हैं, चीनी वगैरह, घी मिल रहा है। दाल चना, सफेद चना, वो सफेद चना नहीं है और दाल चना नहीं है। तहसील जतोई के शहरी ओपन मार्केट और चक्कियों से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। कहते हैं हुकूमत अशिया जरूरिया की फराहमी यकीनी बनाए। कैमरामैन सादर खान के साथ इमरान सईदी, रोही, जतोई। मुल्तान में सेहत दुश्मनों की शामत आ गई। कैंटोनमेंट बोर्ड फूड टीम का कैंट बाजार में छापा। नाकिस सफाई और मुजर सेहत अशिया फरोख्त करने पर कई दुकानें सील कर दी गई। सीईओ कैंटोनमेंट बोर्ड चौधरी बाबर हुसैन की हिदायत पर मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड की फूड टीम इन एक्शन। सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ कैंट बाजार में अचानक छापे मारे गए। इंचार्ज मोहम्मद नासिर की सरबराही में फूड यूनिट की जानिब से अशिया खुर्दनोश की मुतअद्दिद दुकानों को चेक किया गया। स्वीट्स वालों को चेक किया, इसमें सफाई का बड़ा नाकिस इंतज़ाम है और इन्होंने एप्रन और हेड कवर वगैरह कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा गंदगी है और इसमें कोई सफाई का इंतज़ाम सही नहीं है। फ्रिज जो है बहुत गंदी है और वो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो लिहाजा इनके खिलाफ हम आज कार्रवाई कर रहे हैं और इनको सख्त जुर्माने करेंगे। नाकिस सफाई मुजरे सेहत खुराक फरोख्त करने पर कई दुकानों को सील कर दिया गया। मुल्तान कैंट बाजार में फूड यूनिट ने जदीद कसरे शीरी को नाकिस अशिया फरोख्त करने पर सील कर दिया, जबकि दिलमीर फूड और अब्दुल मजीद फूड को गैर मेयारी खुराक तैयार करने और नाकिस सफाई पर भारी जुर्माने आयद किए गए। दुकानदारों का कहना था कि फूड टीम की जानिब से दी गई हिदायत पर आइंदा अमल दरामद किया जाएगा। जिस तरह से मार्केट के हालात चल रहे होते हैं हम उतना ही बनाते हैं। अब आपने देखा है कि यहाँ पे लिमिटेड चीज़ें बनी हुई हैं, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ ही जा रहे हैं और जिस तरह से कैंट बोर्ड चल रहा है उसके साथ मिलकर हम इंशाल्लाह बेहतर से बेहतरी नहीं करेंगे। फूड यूनिट की जानिब से मुतअद्दिद अशिया के सैंपल्स लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। रिपोर्ट आने के बाद मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुल्तान के कैंट बाजार के अंदर नाकिस खुराक लोगों को खिलाने वाले ऐसे फूड आइटम्स बनाने वाले कारखानों पर कैंटोनमेंट बोर्ड की फूड टीम ने अचानक छापा मारा और यहां पर लिए गए सैंपल से अभी तक यही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोगों को कैंट बाजार के अंदर नाकिस खुराक खिलाई जा रही थी, जिसके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ मोहसिन मुल्क, मुल्तान। सेनेट में मुल्तान के 2 बड़े नाम आमने सामने। मकामी रहनुमा भी अपने अपने कायदीन की हिमायत में डट गए। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब नदीम कुरैशी का कहना था कि शाह महमूद कुरैशी ने दुरुस्त बात की। कानून साजी के वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग फरार हो जाती है। सेनेट में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी आमने सामने आ गए। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब नदीम कुरैशी का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब सूबा पर भी राह फरार अख्तियार कर रखी है। जनूबी पंजाब को नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सिर्फ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। जब भी पाकिस्तान के कौमी इशूज़ की बात आती है तो पीपल्स पार्टी और PMLN का रवैया बड़ा मुनाफिकाना होता है। ये एक तरफ अवाम में ये कंपेन करते रहे हैं कि जी ये सेनेट का जो तरमीमी बिल है ये खुदा न खास्ता को बड़ा जुल्म होने वाला है, कौम के साथ पाकिस्तान के स्टेट बैंक को बेचा जा रहा है, हुकूमत पाकिस्तान जुल्म कर रही है। और जब उस तरमीमी
बिल पर वोटिंग का टाइम आता है तो लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में वो मौजूद नहीं होते। नदीम कुरैशी का कहना था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब की पसमानदगी की जिम्मेदार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पहली मरतबा जनूबी पंजाब की आवाम को उसका हक दिया। तरक्की का एक नया दौर देख रहे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आया है पंजाब में, तमाम अजला में यकसा तरक्की का जो पहिया घूम रहा है, ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है पंजाब की तारीख और बिलखुसूस साउथ पंजाब के लोगों के लिए। तर्जमान वज़ीर आला नदीम कुरैशी का मजीद कहना था कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट अवाम की आवाज़ है। अब पूरे सूबे में यकसा तरक्याती काम हो रहे हैं। तरक्की करता जनूबी पंजाब अहले वसेब को मुबारक हो। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। लोकल गवर्नमेंट ने नादरा की मदद से ऑनलाइन सिविल सर्टिफिकेट का इजरा कर दिया। मुल्तान के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलों में बाकायदा ऑनलाइन सिस्टम का आगाज हो गया है। मुल्तान डिवीजन में सिविल सर्टिफिकेट के इजरा के लिए ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ करा दिया गया। पीर कॉलोनी, शादाब कॉलोनी समेत मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलों में ऑनलाइन सिस्टम का आगाज हो गया। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट फारूक डोगर का कहना था कि पंजाब में पहली बार ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है। इस इकदाम से बोगस सर्टिफिकेट नहीं बन सकेंगे। अब किसी फर्द की सर्टिफिकेट का अंदराज सिर्फ एक बार होगा। होती है जिसमें आपकी पैदाइश है, मौत है और उसके बाद आपकी खुदा न खास्ता डाइवोर्स और मैरिज है, तो उसके हवाले से ये हमने ऑनलाइन करवाया है जी। इसमें पहले ये होता था कि आपका एक मेन सर्वर होता था और आप किसी भी जगह पर, अगर आप मुल्तान में बैठे हैं तो मुल्तान से भी आपने एंट्री करवा ली, उसके बाद लोधना चले गए, लोधना भी आपने जाकर एंट्री करवा ली। अब ऐसा नहीं होगा जी। फारूक डोगर का मजीद कहना था कि यूसी सेक्रेटरीज को ट्रेनिंग दी जा रही है, जबकि मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलों में डिवाइसेस भी जारी की जाएंगी। ऑनलाइन सिस्टम के तहत शहरी अपने अंदराज की तमाम मालूमात ले सकेंगे। पहले एक चांस होता था कि आप किसी भी यूसी से जाकर अपना डाइवोर्स सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट या मैरिज सर्टिफिकेट आप इशू करवा लेते थे और 2-3 यूसी से भी आप बाज़-औक़ात जो मैनुअली जैसे फ्रॉड अक्सर होते थे, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब आपने जब एक दफ़ा डाटा अपलोड किया तो वो अब किसी भी जगह पर एक ही दफ़ा होगा, बार बार आप उसको। मुल्तान की दीगर यूनियन काउंसिलों में भी ऑनलाइन सिस्टम जल्द मुतारिफ करवाया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। ख्वाजा फरीद ग्रेजुएट कॉलेज में 3 रोज़ा साइंटिफिक एग्जीबिशन का दूसरा रोज है। ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट के तलबा और तालिबात ने शानदार प्रोजेक्ट्स पेश किए। रहीम खान में जनूबी पंजाब के दूसरे बड़े तालीमी इदारे गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद ग्रेजुएट कॉलेज में 3 रोज़ा साइंटिफिक एग्जीबिशन का इनकाद किया गया। तलबा और तालिबात ने 30 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स पेश किए। दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किरदार, कान का अंदरूनी स्ट्रक्चर, आलूदगी से पाक माहौल, नेशनल पार्क, कोरोना वायरस की वजूहात और वैक्सीनेशन की अहमियत को प्रोजेक्ट्स में शामिल किया गया। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अजमल भट्टी और प्रिंसिपल गर्ल्स पब्लिक स्कूल मैडम राशिदा कामिल ने तलबा और तालिबात की काविशों को खूब सराहा। हमें चाहिए कि हम साइंसी तौर पर बच्चों को इस अंदाज के प्रोजेक्ट कराने पे माइल करें। जब वो प्रोजेक्ट करेंगे तो ज़ाहिर है कि नई चीज़ें उनके जहन में आएंगी, कोई हम नई चीज़ें तख्लीक कर पाएंगे। ये इतना खूबसूरत जो एग्जीबिशन क्रिएटिव बच्चों का जो काम है ना, वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, और इसकी जो ब्यूटी है ना वो इस चीज़ में है कि बच्चों से जब हमने उनके मॉडल के बारे में पूछा तो वो क्रिएटिविटी के साथ साथ कंसेप्चुअली बड़े स्ट्रॉन्ग थे। तालिबात का कहना था कि एमएससी और बीएस के दोस्तों के साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स पेश किए। जो प्रोजेक्ट बनाया है उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थ्रू विंड मिल्स। हमने काफ़ी ज़्यादा वीक से स्ट्रगल कर रहे हैं और अल्लाह ताला का शुक्र है कि एचओडी की उनसे एफर्ट से और उनकी गाइडेंस से और मैम फायजा गाइडेंस से और बाकी टीचर्स की गाइडेंस से बहुत अच्छा हमारा प्रोजेक्ट बन गया है। तालिबात का कहना था कि ऐसे इवेंट्स तालीमी इदारों की रिवायात में शामिल होने चाहिए। आज की जो एग्जीबिशन है उससे हम लोगों की सबकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है और इसका सारा क्रेडिट हमारे एचओडी को जाता है। तो नौजवान नस्ल को इस तरफ ज़रूर आना चाहिए, उनको क्रिएटिविटी की तरफ ज़रूर आना चाहिए, उनको ये सब चीज़ें करनी चाहिए ताकि हमारा मुल्क का नाम रोशन हो। तालिबात साइंटिफिक एग्जीबिशन में जीत के लिए पुरुम्मीद दिखाई दी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम खान। रहीम खान में प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के एजाज में शानदार अलविदाई तकरीब हुई। शुरका ने मंजूर अहमद की खिदमात को खूब सराहा है। मंजूर अहमद का कहना था कि वो 6 सालों से अकेले ही पढ़ा रहे थे। इंतजामी अमूर और दर्जा चहारुम के काम भी खुद किए।
रहीम यार खान में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लखनवाला के हेडमास्टर की रिटायरमेंट पर शानदार अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। जिले सदर पीपल्स पार्टी सरदार हबीबुर रहमान खान गुपांग, फलाई रहनुमा चौधरी मोहम्मद बूटा आबिद, डिवीजनल सदर जमीयत उलमाए पाकिस्तान रियाज अहमद नूरी, डिप्टी डीओ मोहम्मद अशरफ खान चांडिया, जिले जनरल सेक्रेटरी एपका मोहम्मद नदीम, इलाका मकीन तलबा तालबात की बड़ी तादाद शरीक हुई। रिटायर हेडमास्टर मंजूर अहमद का कहना था कि वो 6 सालों से अकेले ही पढ़ा रहे थे, इंतजामी अमूर और दर्जा चाहरुम के काम भी खुद किए। मैं 6 साल से स्कूल में अकेला हूं, बल्कि 37 साल सर्विस के दौरान मैंने बच्चों की तालीम के साथ साथ तरबियत भी की है, इलाके के लोगों की भी तरबियत की है, मनशियात से इनकार, ज़िंदगी से प्यार, तम्बाकू नोशी के खिलाफ जहाद के हवाले से काम किया है कि बच्चों की तालीम के साथ साथ अगर उनमें तरबियत ना आई, मुआशरे की तरबियत ना हुई, तो हमारे मुआशरे में जुराइम का खात्मा नहीं हो सकेगा। जिले सदर पीपल्स पार्टी सरदार हबीबुर रहमान खान गुपांग और समाजी रहनुमा चौधरी मोहम्मद बूटा आबिद ने मंजूर अहमद को खराज तहसीन पेश किया। आज की ये तकरीब मास्टर मंजूर अहमद साहब के एजाज़ में है, अलविदाई तकरीब है। 37 साल मुद्दत मुलाजमत ख़त्म करके जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि स्कूल में किस तरह एक जश्न का समा है। मास्टर मंजूर साहब को जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। उन्होंने जो हमारे इलाके में हमारे लिए, हमारे पूरी इस धरती के लिए जो उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया है, मैं फिर कहूँगा कि उनको जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए बहुत ही कम है। तकरीब के इख्तिताम पर मंजूर अहमद को एजाजी शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में टैलेंट हंट का इनेकाद हुआ। 6 मुख्तलिफ इक़साम के मुकाबले होंगे। उम्मीदवार ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 16 से 40 साल के अफराद हिस्सा लेंगे। अब जनूबी पंजाब के लोग अपने हुनर को आजमाएंगे। टैलेंट हंट में मौसीकी, दस्तकारी, फाइन आर्ट्स, तख्लीकी अदब, थिएटर और सकाफती रक्स के मुकाबले होंगे। तमाम जो लोग हैं, मतलब चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, 16 से 40 साल की उम्र के लोग जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और लोक रक्स के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। रजिस्ट्रेशन का जो इसका तरीक़ाकार है वो मैं बता देता हूँ कि हमारे फेसबुक पेज पे मुल्तान आर्ट्स काउंसिल के उसका ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए भी उसका लिंक दिया हुआ है, उसका फॉर्म भी दिया हुआ है। 4 डिस्ट्रिक्ट्स में जो हैं वो हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स पे इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखवा दिए हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर जाहिद इकबाल ने रूही को बताया कि उम्मीदवार ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दिए गए नंबर पर अपने कवायद भेजकर रजिस्टर हो सकते हैं। 16 से 40 साल के अफराद इसमें हिस्सा ले सकेंगे, जबकि सकाफती रक्स के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। ये मुकाबले 3 फरवरी से शुरू हो रहे हैं विहाड़ी में, उसके बाद फिर लोधना, खानेवाल और उसके बाद मुल्तान में होंगे। हर कैटेगरी के जो टॉप 3 पोजीशन होल्डर्स होंगे वो हर डिवीजन के वो फिर डिविजनल लेवल पे आके परफॉर्म करेंगे और डिविजनल लेवल का जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर होगा वो फिर इसके बाद प्रोविंशियल लेवल पे इनके लिए इनामात भी रखे गए हैं। जाहिद इकबाल का मजीद कहना था कि टैलेंट हंट का इनकाद अच्छा फैसला है। जीतने वालों में इनामात भी तकसीम किए जाएंगे। मुकाबले तहसील, जिला और सूबाई सतह पर मुनक्किद किए जाएंगे। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ इलिशबा आसिफ, मुल्तान। बहावलपुर ड्रिंग स्टेडियम में खवातीन क्रिकेटर्स के ट्रायल्स हुए। जनूबी पंजाब के 4 डिवीजनों से 100 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बहावलपुर ड्रिंग स्टेडियम में खवातीन क्रिकेटर्स के ट्रायल्स लिए गए। साबिक बाउलर, कौमी क्रिकेट टीम अस्माविया इकबाल और पीसीबी कोचेस ने निगरानी की। जनूबी पंजाब के 4 डिवीजन से 100 से ज्यादा क्रिकेटर्स ने हिस्सा लिया। इवेंट हमारा हुआ है, ट्रायल्स हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है, लेकिन हमें यहाँ निकालते नहीं है। अब ये कोरोना के बाद आज जाके हमारे ये ट्रायल्स हुए, जो हमारे 2 साल पहले के ट्रायल्स इन्होंने रखे हुए थे, ये जाके 8 ट्रायल्स हुए। कम से कम यहाँ मतलब ट्रायल्स तो लें, कम से कम बच्चे निकले, ऊपर निकले। ऐसी अपॉर्चुनिटी गर्ल्स के लिए आती रहे और अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी जब गर्ल्स के लिए आएगी तो गर्ल्स निकलेगी। और गर्ल्स ये कहना गलत होता है कि गर्ल्स जो है वो मतलब बाउंड रखे, अंदर रखे, घर पे रखे, ये चीज़ें गलत होती है। तो आप उनको गर्ल्स को खेलने के लिए आगे अपने बेटियों को निकालें ताकि वो भी कुछ बन पाए। साबिक बॉलर वुमेन कौमी क्रिकेट टीम अस्माविया इकबाल का कहना था कि जनूबी पंजाब में टैलेंट की कमी नहीं। मुंतखब खिलाड़ी विमेन क्रिकेट लीग में जनूबी पंजाब की नुमाइंदगी करेंगे। तो ये टूर्नामेंट कराने का मकसद सिर्फ यही है कि साउथ को यहाँ से ज़्यादा प्रमोशन मिले। बहुत ज़्यादा यहाँ पे टैलेंट है, लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, इसलिए यहाँ पे ट्रायल्स रखे गए। एक रोजा ट्रायल्स में खिलाड़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत इस बात का सबूत है कि जनूबी पंजाब में खवातीन क्रिकेटर्स की कमी नहीं। रहीम यार खान में इंटर तहसील हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल मैच तहसील खानपुर और तहसील रहीम यार खान की फीमेल फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के दरमियान कड़ा मुकाबला हुआ।
तहसील रहीम खान की टीम ने 3-0 से मैच जीत लिया। रहीम यार खान के गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल सेकेंडरी स्कूल में इंटर तहसील हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में तहसील रहीम यार खान और तहसील खानपुर की टीमें मद्दे मुकाबिल हुई। खिलाड़ियों का कहना था कि भरपूर प्रैक्टिस करने के बाद मैदान का रुख किया। हम अपनी जीत पे बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं। हमने सेमीफाइनल जीत के फाइनल में क्वालिफाई किया है और इंशाल्लाह आज भी हम जीतेंगे। स्कूल प्रिंसिपल, असातिज़ा और तालबात ने खिलाड़ियों को तालियों से खूब दाद दी। तहसील रहीम यार खान टीम ने 3 गोल किए, जबकि तहसील खानपुर की टीम कोई गोल ना कर सकी। हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी प्रैक्टिस किया है, हम भी सेमीफाइनल जीते हैं। मैं तहसील खानपुर से हूँ और मेरी टीम भी बहुत अच्छी है और मैं खुद भी बहुत अच्छा खेलती हूँ। मैं प्लेयर रह चुकी हूँ हॉकी की और इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि हम विन करेंगे और इंशाल्लाह हम यहाँ से जीतेंगे। खिलाड़ियों का कहना था कि हॉकी खेल कराने का मकसद कौमी खेल को फरोग देना है, जबकि पढ़ाई के बोझ तले दबी तालबात को भी लुत्फानंदोज होने का मौका फराहम करना है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। मुल्तान जिम्नेशियम में खिलाड़ियों की रौनकें लग गई हैं। बैडमिंटन कोच नौजवानों को ट्रेनिंग देने में मसरूफ हैं। खिलाड़ी कहते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर बहुत कुछ सीखने को मिला है। मुल्तान जिम्नेशियम में खिलाड़ी आगे बढ़ने की तैयारियों में मसरूफ हैं। बैडमिंटन कोच कहते हैं खिलाड़ियों को चैंपियनशिप के लिए तैयार किया जा रहा है। बैडमिंटन की जो ट्रेनिंग है, पहले तो ये एक्सरसाइज इनकी बहुत ज़रूरी है बैडमिंटन में। आज हमने इनका शेड्यूल एक बनाते हैं कि इनका आज से इनका 3 दिन का शेड्यूल है बड़ा फिटनेस ट्रेनिंग का और 3 दिन का शेड्यूल का इनकी शटल ट्रेनिंग का, क्योंकि इस तरह हमारी अब नेशनल जूनियर आई हुई है 25 से 27 लाहौर में। इस तरह फिर आगे से 1 से लेकर 6 तक नेशनल चैंपियनशिप सीनियर्स की है, तो उनकी तैयारियों में ही हम ये बैडमिंटन की ट्रेनिंग स्टार्ट है हमारी। बैडमिंटन खेलते खिलाड़ियों का कहना था कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग के साथ साथ टूर्नामेंट और मैचेस भी कराए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तैयारी है। हाफिज अनीस खान हमारे कोच हैं और बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवा रहे हैं और अब इन्होंने जो कैंप लगा दिया है हमारे नेशनल के लिए वो हम खेलने जाएंगे और इंशाल्लाह मुल्तान का नाम रोशन करेंगे। शहरे औलिया के शहरी खुद को मंशियात से दूर रखते हुए खेलों की तैयारियों में मसरूफ हैं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहेब गोरमानी, मुल्तान। रोही स्टूडियो से फिल वक्त